Can you hear me? Good morning. Please mute your audios. Join the audio. Okay. Yes. As we know, we in the medical surgical too, we have the congest heart diseases. When heart disease, and before going to start our heart disease, just we must know the how the heart functions and what is the anatomy of the heart. Okay. Just I'll start with the introduction. Heart, the most hard-working muscles of our body, pumps 4 to 5 liters of blood every minute during the rest. As we in the picture itself, anatomy and physiology of the heart, supplies nutrients and oxygen-rich food in all the body parts, including itself. हार्ट के चलते ये सब न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सब बॉडी को सप्लाई करता है ऑल ओवर द बॉडी. Then coronary arteries surrounding the heart keep it nourished with the blood. Okay, the main arteries will have the capacity to carry and to push and to reach all the oxygenated blood to the overall the body. Okay, next, see then how the heart will be function. As we know, heart functions in the proper systematic and pulmonary circulations, and in this next, the heart, when it become dysfunctions, suppose how the heart diseases will occur, how the plagues, how the heart become hardened, how the heart become fatty. See, there are several reasons are there to become the heart artery blocked. See, what is the atherosclerosis? First, the heart become hardened, the artery become hardened. What is the atherosclerosis? What is the coronary artery diseases? See, if the artery become narrowed, the artery become filled with the plaques, the artery become filled with any collagens, artery filled with any blood plaques, artery filled with any fat, it become heart diseases, artery disorders. Over time, the fatty deposition called a plaque, जो बोलते हैं ना हार्ट में जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में मतलब बहुत सारे तरीके से होता है, इसमें से एक प्लेक टाइप का होता है, that is deposits in the heart arteries, build up within the arteries walls, arterial walls में क्या था build up होता है, the artery becomes narrow, this atherosclerosis. So जब नॉर्मल पाइप्स में अगर कुछ और जो ये होता है, जैसे कि जो फॉर्मेशन होता है फ्लेक टाइप का, अगर बिकम नैरोस, दैट इज नोन एज द अथेरोस्क्लेरोसिस. देन व्हेन दिस ऑकर्स इन द coronary arteries, heart does not get sufficient blood. As we know, suppose the narrow हो गया, constricted हो गया heart, any deposition हो गया, so normal flow of the blood of the heart through the arteries become reduced. अगर reduce होता है, कम होने लगता है, तो automatically the heart will not and other part of the body will not get a sufficient oxygenated blood to the body. The condition is called a coronary artery disease or coronary heart disease. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? Coronary artery diseases. When it is called due to the any deposition in the artery. Okay, next. Here, see the pictures and take it in a mobile by getting through screenshot. Okay, some fats are like the forms. See, the mice fat deposits at old age, it starts from the 2 years of the age. देखो कैसे हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के ओल्ड तक कैसे उसका डिपोजिशन होने लगता है. Okay, foam cells, fatty streak, intermediate lesions, atheroma, and fibrous plaques, completed lesions, ruptures. Then from the first decade, see here, the first decade, from the third decade and the fourth decade, how the artery goes on increasing their schedule, they become formation of the plaques in the arteries. How? From the, it starts from the 2 years of the age. Starting से ही जब old age तक कैसे उसका manually वो develop होते जाता है. Next, see here the decade wise the heart become, especially in the old age, इसलिए after the 30 and after the 33, the every person need to check up their hearts. Okay, suppose
आर अदर ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। देखो हार्ट का मेन काम है, हार्ट इज द सेंटर पोर्शन, इट सेंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओवर ऑल द बॉडी। अगर नहीं पहुंचा जाता है, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचता हार्ट को, सॉरी ब्रेन को और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को, क्या क्या होने लगता है? सिर्फ ब्रेन को इस्केमिक स्ट्रोक होगा, एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस लाइक, अब ये आर्टरी मतलब कहीं पे भी ऑल ओवर द बॉडी में कहीं पे भी इसका ब्लॉकेज हो सकता है, but heart is the main, it has the main functions to pump the oxygenated blood to send all over the body. Okay, see, coronary heart diseases like angina hai, myocardial infarction, that is known as heart attack, sudden cardiac death, मतलब heart failure, completely heart become death. ठीक है, next here another main symptoms, क्या क्या होता है अगर एंजिना होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? अगर हार्ट का पाइप जो बोलते हैं ना, आर्टरी बिकम नैरोज, reduce the normal thickness, क्या होने लगता है? नो सिम्टम्स फॉर द लॉन्ग पीरियड। पहले क्या होता है, उनको कुछ नहीं लगता है, ओके बाद में धीरे धीरे से क्या होता है, बिकम चेस्ट पेन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑन एक्सटेंशन, आल्सो नोन एज द एंजिना। इसलिए एंजिना इज आल्सो नोन एज द चेस्ट पेन बोलते हैं, ओके और माइनर हार्ट अटैक, एंजिना अगर हो जाता है दैट इज माइनरी, उसको क्या बोलते हैं, माइनर हार्ट अटैक। देन धीरे धीरे से ग्रेजुअली डेवलप होते जाएगा, इट बिकम myocardial infarction, become the ischemia बोलते हैं, heart the muscles become ischemic because lack of oxygenated blood sent to the periphery of the muscles of the musculature of the heart. Okay, heart attack, severe chest pain, जब heart attack होने लगता है ना, हो जाता है ना, उस टाइम the patient feel very severe death of the heart muscles। देखो अगर blood oxygenated blood ही नहीं जाता तो क्या होता है, muscles will not get oxygenated blood, then heart failure, irregular heartbeats and that become sudden death. Okay, next see, धीरे अगर हार्ट डेथ होने के बाद हाउ बिग इज द प्रॉब्लम, कैसे उसको बिग प्रॉब्लम बोला जाता है, माना जाता है। नंबर 1 इसको बोलते हैं हार्ट नंबर 1 किलर डिसीज वर्ल्ड वाइड, इसलिए नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली इन द अमेरिका, द मस्ट मोर पीपल्स आर डाइंग विद ओनली द हार्ट डिसीजेस। ओके 12 मिलियन डेथ्स एनुअली। देखो हर एनुअली कितना मिलियन डेथ हो रहा है, 12 मिलियन डेथ होने जा रहा है, मतलब हो रहा है ना, ड्यू टू द ओनली हार्ट डिसीजेस। During the last 30 years, large declines in the developed countries, rising health awareness and government programs, alarming the increases in the developing countries, especially in the India। इसलिए इसको क्या कर धीरे धीरे से ग्रेजुअली क्या होने लगा है, इंडिया में बहुत सारे लोग उनको अवेयरनेस आ गया है, उसका हार्ट डिसीज के बारे में जो वो लोगों को जानकारी भी आ गया, धीरे धीरे से उसको एक अलार्म टाइप का हमको नॉलेज दे रहे ताकि हम लोग अपने आप में हार्ट के डिसीज से बचा सकें। ओके देन नेक्स्ट आफ्टर द प्रॉब्लम्स, हाउ इट बिग प्रॉब्लम तो पता चला, उसको कैसे अवेयर रखना है, वो किस हमको ही क्यों होता है, व्हाई मी, बिकॉज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, ये जेनेटिक हो सकता है, पुअर हैंडलिंग ऑफ द फैट्स एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई बीपी, कोरोनरी आर्टरी इज अ मेजर कॉज फॉर द हार्ट डिसीज। एनवायरमेंटल इंसल्टेशन क्या होता है, देखो सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आया, डायबिटीज आया, ओबेसिटी मोटापा होता है, हाई बीपी जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर हो, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज मैंने बताया था जो फॉर्मेशंस होता है हार्ट डिसीज में, जो डिक्लाइन होता है, जो रिफ्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जो फाइब्रस फॉर्मेशंस होता है, और येलो डिस्क्लेशन फैट डिपोजिशन होता है। एनवायरमेंटल इंसल्ट्स क्या क्या होता है, लाइक अर्बनाइजेशन, द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन द अर्बन लेवल, सडन चेंज इन द लाइफस्टाइल, हम जो सडनली जो हम लोग बिहेवियर ऑटोमेटिक लाइफस्टाइल में जो चेंजेस करते हैं, the body will not respond suddenly for the external environment, so that environmental changes also affect on the heart. Then here what increases the risk, क्या जो रीजन है, जो रिस्क है, वो रिस्क क्यों इंक्रीज होता है सडनली, यू कांट हेल्प इट, यू कैन हेल्प इट। ओके एज द एज, देखो एज भी कंपेयर किया गया और क्या क्या अदर रीजंस भी हो सकता है ये हार्ट रिस्क ज्यादा होने में। एज है मेन के लिए मोर देन इक्वल टू 45 है, वुमेन में भी मोर देन इक्वल टू 45। अभी आजकल जो स्टडी बता रहे हैं आफ्टर द 33 आर ऑफ द एज, एवरी पर्सन मस्ट अंडरगो ऑन द हिज रेगुलर रूटीन चेकअप ऑफ द हार्ट, बिकॉज द इंक्रीजिंग और चेंजेस ऑफ द मॉड्यूलर लाइफस्टाइल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके सेक्स, race and family history, as the you can't help it for the increasing the risk, but some help है, वो क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, अदर जो डिसीज है लाइक अदर एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग,
high blood pressure, diabetes, alcohol, physical inactivity. Okay, the physical inactivity होने से भी the body just होने से automatically it is also increases the risk of heart disease. Next, cholesterol, A type of fat. जो कैसे फैट डिपॉजिशन होता है, कौन सा टाइप ऑफ फैट होता है, वो हमेशा उसमें वेरी डेंजरस टू द आर्टरी. एवरीबडी नीड्स द कोलेस्ट्रॉल. आपको पता है, सब हर कोई, हम लोग डेली कहते हैं डेली रिक्वायरमेंट इतना है, 1 ग्राम ऑफ फैट इतना होता है, हम इतना खाने से इतना कैलोरी मिलता है, बट that will not increases more than the normal age. Okay, it serves a vital function in the bodies. It circulates in the blood. हमको तो पता है कोलेस्ट्रॉल मतलब फैट इज सर्कुलेट होते रहेगा फॉर द मेंटेनिंग द स्मूथनेस एंड मेंटेन ऑफ द. इट मेनली हेल्प्स फॉर द ऑर्गन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अदर एक्सटर्नल इंजुरीज. टू मच कोलेस्ट्रॉल कैन बी डिपॉजिट इन द आर्टरीज इन द फॉर्म ऑफ प्लेक एंड ब्लॉक देम. हमको तो पता है कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ जाता है उतना क्या होता है, आर्टरी बिकम नैरोड होता है. नैरो मतलब कितना फैट होता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है तो जगह ही नहीं होता है ना, बचता नहीं ना, इसलिए वो फ्लेक्स देन दैट ब्लॉक द आर्टरी को ब्लॉक कर देता. नो सिम्टम्स टिल द हार्ट अटैक. देखो किसी को पता ही नहीं चलता, किसी को स्मॉल हार्ट पेन होने लगता है, बट किसी को सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है फर्स्ट हार्ट अटैक तक. नेक्स्ट जो ये फर्स्ट कोलेस्ट्रॉल है. कोलेस्ट्रॉल कैसे हमको रीजन है इसको, इससे हम लोगों को हार्ट बिकम नैरोड होता है. ओके, देन गुड इज बैड कोलेस्ट्रॉल, लाइक हम लोग बोलते हैं ना एलडीएल एंड एचडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन. हमको चाहिए low density protein is known as the bad cholesterol. It has the tendency to increase the risk of the heart diseases. LDL cholesterol is a major component of the plaque and that clogs the arteries. Everybody knows very well because the normal cholesterol will be within the 200 per deciliter. But HDL, high density lipoprotein, is known as the good cholesterol. Higher in the women, increases with the exercises. देखो स्पेशली हाई HDL जो होता है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं. सम मेजर कंपोनेंट्स है इसमें भी. कोलेस्ट्रॉल हेल्प द कैरी सम ऑफ द बैड कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ द आर्टरी. HDL हमको इतना हेल्प करता है, जितने भी बॉडी में जो अंदर गंदा जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है. क्या है? HDL. ओके, LDL ये क्या करता है, बॉडी में रह जाता है, इट इंक्रीजेस द कार्डियक रिस्क. नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल के बाद और जो है हमारा मोटापा, जो मोटापन होना है. ओके, सी लाइक पीपल हु आर ओवरवेट 10 to 30% मोर देन देयर नॉर्मल बॉडी वेट, obese have the 2 to 6 times the risk of developing a. देखो another one reason क्या है, risk factors क्या है, obesity. Normal weight especially hip ratio क्या है, देखो more especially in the greater than 0.85% में women में है, 0.95 for women में है, and peers or apple. See like as we know the obesity how it increases the fat in the hip waist and hip ratio. देखो हम लोग बोलते हैं ना ये इतना मोटा है, उसका वेस्ट इतना है, उसका हिपो इतना है. वो जो मैक्सिमम हमारे बॉडी में क्या होता है, जो सर्टेन प्लेस है वेयर द फैट बिकम डिपॉजिट, लाइक आर्म में हो, पेट में हो, वेस्ट में हो, ये जगह में होता है, ताई में हो, ये एरिया में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जाके डिपॉजिट होने लगता है. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर द ओबेसिटीज द अनदर सम रिस्क्स आर देयर टू इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ व्हाट, pears. See the pears and apples. Apple shaped are at a higher risk. देखो हम लोगों को बोलते हैं ना pear shaped पेट है, ये है, वो उसका जो वेस्ट कम है. It increases also heart risks. Like pear shaped pouch store fat on the hips and the thighs just below the surface of the skin, and apple shaped pouch store body fat around the abdomen and chest surrounding the internal organs. Like देखो different people है, different का तो sizes होता है, variations होता है. According to that, they are also having the some problems that also help to increase the life risk, heart risk of the heart. Then next, physical inactivity. हमेशा सोते रहना, lazy fellows जिसको हम बोलते हैं. ओके, और आराम, खाना पीना सोना यही काम है उनका, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रखते बॉडी को. एवरी मॉर्निंग my brain tells me to exercise, but ह्यूमन बॉडी बोलता है मैं सोऊंगा, रेस्ट करूंगा, and my body laughs at the ideas. But हम लोग नींद आ रहे हैं, मैं सोऊंगी, मैं नहीं करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा. Okay, the problems it also increases. Another problems है lifestyle, like moderate lifestyle. हमारा जो सिगरेट स्मोकिंग है, दारू पीने वाला है, okay, high intake of the cholesterol से, okay, increases the cigarette smoking, increases the blood pressure, increases the high density, decreases the HDL, damages the arteries and blood cells, increases the heart attack. Cigarette smoke contains more than 4,000 chemicals and 200 of these chemicals are
पॉइजनस। देखो सिगरेट में इतना सारे केमिकल्स है, उसमें से 200 तो वेरी पॉइजनस है। एज जो सिगरेट में निकोटिन होता है, इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ओके, इट अगर वंस इट कंस्ट्रिक्ट होते जाएगा तो ब्लड नॉर्मली द आर्टरी बिकम नैरो, इंक्रीज द ब्लड, अगर जितना आर्टरी नैरो होगा उतना प्रेशर में बढ़ा हुआ होता है। ओके, एचडीएल कम करेगा, एचडीएल कम होगा तो ऑटोमेटिकली एलडीएल ज्यादा होगा, एलडीएल ज्यादा होगा तो दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट बैड कोलेस्ट्रॉल आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ व्हाट हार्ट risks. Okay, if you think you are if you are smoking the cigarette, you are mistaken, it's the other way around. Which one is you? किसमें से देखो हम चॉइस करते हैं, like if you think you are smoking the cigarette, you are mistaken. हमको पता है जब सिगरेट पीने से ये सब होने वाला है, फिर भी it's the other way around. हमको तो मालूम है, हर ओवर ऑल ओवर इंडिया में, नॉट ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये सब चीज हैबिचुअल है. So everybody has the habit to increase the habit of what cigarette smoking, and it also has the risk of increasing the heart risks. Then alcohol consumption, पीने वाला. Okay, जो शौकीन होते हैं ना, जो पीने वाले, in small amounts it is beneficial one is to drinking, but everybody needs alcohol, but that is also in the limit way. But in small amounts it is beneficial to 1 to 2 drinks, but in the large amount it adds the fat and calories, raise the BP. देखो जितना बॉडी के लिए जरूरी है उतना ही पीना है, 1 to 2 ड्रिंक्स. अगर मोर देन से नॉर्मल हो जाता है, दैट विल आल्सो इंक्रीजेस द फैट, कैलोरीज एंड रेज द बीपी. क्योंकि 4 ड्रिंक्स पर डे होगा, यू एंड अप विथ द gastroenterologist instead of the cardiologist. This is the very fine line, finer for the women as they are at a higher risk. देखो as we know the risks are women compared to new study अभी भी बोल रहा है, men से ज्यादा women में भी also more risks. Then diabetes is also one metabolic disorders. At any given cholesterol level, diabetic persons have the 2 to 3x 10 higher risk of the heart attack, stroke. देखो डायबिटीज में बेबी क्या होता है, हाइयर रिस्क है हार्ट डिसीज का. A diabetic is more likely to die of the heart attack than the non-diabetic. देखो diabetic is more likely to die of the heart attack than a non-diabetic. Non-diabetic से ज्यादा रिस्क ज्यादा किसमें है, डायबिटिक में. 80% diabetics die from the heart diseases. जिसको भी डायबिटीज है उसको भी हार्ट डिसीज प्रॉब्लम स्टार्ट होगा. नॉट ओनली हार्ट डिसीज, ऑल ओवर ऑर्गन बिकम अफेक्टेड ड्यू टू द डायबिटिक once it is not controlled. But risk of sudden death from the heart attack for a diabetic is the same as that of someone who has already had a heart attack. देखो कभी कभी सडन डेथ होता है ना हार्ट अटैक से, फॉर द डायबिटिक इज द सेम एज दैट ऑफ द समवन हु हैज ऑलरेडी हैड अ हार्ट अटैक. क्योंकि वंस मैंने बताया था एंजाइना इट इज इंडिकेटिंग फर्स्ट हार्ट अटैक. ओके, अगर इट ग्रेजुअली इट इंक्रीजेस, समवन हु डजंट नो द व्हाट इज हार्ट अटैक, बट सम टाइम हो जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता कैसे होगा. ओके, नेक्स्ट सी after the diabetes another some risks are there. Interactions of the risk factors. Risk operates across the continuum, no clear cut line. blood pressure है, cholesterol है, overweight है, smoking है. Risk multiplicative when many risk factors coexist. Risk factors often cluster together. Majority of the events arises in the individual with the modest elevations of many risk factors than from the marked elevation of single risk. Compare interaction between the जो रेशो दिया गया है, जो कंटिन्यूम है, नॉन क्लियर है, कट लाइनिंग है, लाइक ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, देन overweight है, smoking है. Okay, the risk is multiplicative when many risk factors coexist. Risk factors often cluster together. Okay, here next. Then misfortunes always come in by door that has been left open for them. देखो misfortunes always come in by a door that has been left open for them. हम हमेशा कुछ खुला रखते हैं ना, वो कुछ भी कोई भी घुस जाता है. वाइज प्रॉवर्ब है दिया गया है. ओके, then every day you make a choice to try help protect yourself and family. In fact, protecting yourself has become second nature. You just do it. हमको पता है हमको अपने आप में कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम अपने आप में कैसे चॉइस करना है, हम अपना लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूवमेंट करना है. एवरीबडी हमको पता है. यू जस्ट डू इट इन योर होम. बट डू यू नो व्हाट यू कैन डू टू हेल्प प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस नॉन कॉज डेथ ऑफ हार्ट डिसीज. हमको तो पता है कैसे भी एक दिन मरना है, बट एवरीवन नोज हाउ इट विल बी क्यूर्ड एंड व्हाट हेल्प्स टू कंट्रोल द reduce the heart diseases. Okay, ये हमारे अपने आप में ये है, हम अपने आप में हमारे फैमिली को, अपने आप में अपने को क्या करना, प्रोटेक्ट रखना है.
ओके नेक्स्ट इसके बाद और बहुत कुछ है। देखिए हम लोग इनएक्टिव रहने के लिए बहुत सारे हम लोग फॉलो करते हैं। लाइक हम लोग बिना अब पहले पहले के जो लोग थे वो कैसे पैदल चलते थे, क्या काम करते थे। But nowadays, everyone has the vehicles, but everyone has in a very low mood of taking the cycle, low mood of having the habit of walking. But there is a one completely the people have become inactive in their exercises. For me, car, I want the best mechanic. But so देखो हम मैकेनिक बनना है कार के लिए, तो हम अपना हार्ट को भी हम अपने आप में हमको मैकेनिक हैं. But for my own creative strategies do not work. See, कहीं जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजीज हमको वर्क नहीं करता. नेवर हैड अ टेस्ट फॉर रे टेस्ट, नेवर बीन अ डॉक्टर, आई हेट देम. नेवर टेक ए मेडिसिन, माय बीपी इज नॉर्मल सो स्टॉप बेड्स. मिरेकल मैन, मिरेकल मेडिसिन, सो मेनी ऑफ देम. आई एम माय ओन डॉक्टर, नो फीस टू. सी सम स्ट्रेटेजीज होते हैं कभी कभी हमको काम नहीं करता. हमको बीपी है तो दवाई लेना ही पड़ता है. हमको किडनी प्रॉब्लम है तो हम किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो डायलिसिस करना होता है तो करना ही पड़ेगा. ओके मेडिसिन के बिना हम लोग जी सकते हैं, वो लेने से हम लोग आराम से रह सकते हैं. ओके डोंट नेग्लेक्ट, बट द स्ट्रेटजीज आल्सो विल नॉट हेल्प यू टू डिक्रीज द कार्डियक रिस्क. देन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज रूल 1, हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट करना. अभी तक हमने क्या क्या देखा. व्हाट इज अथेरोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज एंजाइना एंड व्हाट इट कॉजेस, क्या कॉजेस होता है. ओके See, preventing heart diseases, rule 1, the lifestyle you eat. क्या क्या खाना है regularly. Eat a variety of fruits and vegetables every day. The 5 servings, they are naturally low in fat and antioxidant. Eat colored vegetables and fruits. हम जानते हैं जो फैट आल्सो इंक्रीजेस, जिसमें हम फैट है हमको कंट्रोल में खाना है. ओके कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, ओके नॉन वेजिटेबल आइटम्स, नॉन वेजिटेरियन जो आइटम्स होता है ना कम खाना है. बट body also need a fat, but fat should be in the limit way. इसलिए हम जो भी वैरायटी वेजिटेबल्स खाते हैं ना, दैट शुड बी इन द हाई रिच विटामिन में होना चाहिए, मिनरल्स में होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट में होना चाहिए. ओके ईच कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. हम जानते हैं ना जब सब्जी लेने जाते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है, कैरेट्स होता है. ओके वेरियस आइटम प्रोटीन्स जो बोलते हैं ना हम लोग जो खाते हैं, जो पल्सेस एंड सीरियल्स, यू शुड टेक इन द प्रॉपर वेज. Eat a variety of grain products, like मैंने अभी बताया था cereals and pulses. Choose non-fat और low-fat products. हम ही को चूज करना है. Non-fat क्या कौन सा फूड में आता है, low-fat products में किस में ज्यादा आता है. Okay, use less fat meats, chicken, fish and lean cuts. Switch to fat-free milk, toned skimmed milk. हम जानते हैं ना आजकल जो डायरेक्ट जो दूध आता है, जैसे कि हम लोग जो especially in the village people, they are having the habit of the tone like fat free milk. No, they are not, they are eating the rich fat milk. But nowadays we are having the pocket made milks that completely toned milk है, skim milk है, हमको उसमें free fat रहता है तो हम आराम से पी सकते हैं, खा सकते हैं. ओके नेक्स्ट अनदर मेजर्स है डाइटरी गाइडलाइंस में और क्या क्या करना चाहिए. ओके आप पिक्चर भी देखो और स्क्रीनशॉट भी ले इसका, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है हार्ट डिजीज का. ओके then limit your intake of foods high in calories and low in nutrition, including the foods like soft drinks, candy, junk food. हमको तो पता है being a students, हम being a professionals, हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, but you should properly educate them, educate the family members, educate your surrounding people regarding the increasing the risk of heart disease and what dietary guidelines should be educated. Limit your intake of foods high in calories, low in nutrition, including foods like soft drinks, candy, junk से सब मना करना है. Limit the foods high in saturated fat, trans fat and cholesterol. ये सब चीज को लिमिट करने के लिए उनको एडवाइस देना है. Eat less than 6 grams of salt a day. देखो ये salt 6 grams per day से भी कम खाना है. Have no more than 1 to alcoholic drink day if you are regular drink. जो भी रेगुलर ड्रिंकर है, जो हैबिट्स है, जो हाइपरटेंसिव है, उनको सब चीज से क्या करना है, कंट्रोल में रखना है. अगर ये डाइटरी गाइडलाइंस, इतना फूड कोलेस्ट्रॉल फ्री कम करना है, साल्ट कम खाना है, और रेगुलरली 1 to 2 ड्रिंक्स ही खाना है. मोर देन इट विल नॉट इंक्रीज मोर देन 4 ड्रिंक्स पर डे. ओके लिमिट एंड अवॉइड लाइक फूड रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट, जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स है. लाइक एग है, एग में भी प्रोटीन भी है और उसमें अंदर में येलो पार्ट भी है. ओके हम योग को नहीं खाना चाहिए.
फैट मीट, ऑर्गन मीट, उसमें जो पता है ना, फैटी मीट एंड ऑर्गन मीट लिवर में ज्यादा होता है। बटर चिकन, बटर फिश फ्राइड फिश, मिल्क फैट, देसी घी, बटर, चीज, मलाई, राबड़ी, कुरचन, दोड़ा, आइसक्रीम, फुल क्रीम मिल्क, ये सबको मना करना है, लिमिट करना है, अवॉइड भी करने के लिए कोशिश करना है। हिडन फैट लाइक बेकरी बिस्किट्स, देखो बेकरी बिस्किट जो होता है ना, हिडन फैट होता है, इसमें दिखता नहीं है। फैटीज केक एंड पेस्ट्रीज, ये इट विल इंक्रीज द हार्ट, बिकॉज इसमें क्या है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। रिच कोलेस्ट्रॉल होने से हमको तो पता है एलडीएल इंक्रीज होगा, इट अलोज द हार्ट बिकम डिपोजिशन ऑफ फैट इन द आर्टरीज। ओके, कुकिंग ऑयल्स कौन सा यूज करना चाहिए? ओके, सी सैचुरेटेड फैट्स में इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल, अवॉइड कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी, इसमें ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, इंक्रीजेस द कोलेस्ट्रॉल। कोकोनट ऑयल में ज्यादा है, पाम ऑयल में ज्यादा है और घी में ज्यादा है। मैन्युफैक्चर्ड फैट्स में हार्ट हेल्दी ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसमें मोनोसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट है, इसलिए इसको ये सब चीज को यूज करना है, इस्तेमाल करना है। लाइक हार्ट हेल्दी, लाइक ऑलिव ऑयल यूज करना है, ग्राउंडनट ऑयल करना है, कोनोला ऑयल यूज करना है, मस्टर्ड ऑयल करना है। अनसैचुरेटेड हार्ट हेल्दी बिकम सनफ्लावर, ये पॉली अनसैचुरेटेड है, इसमें ज्यादा नहीं रहता है, मतलब हेल्दी फॉर द हार्ट। सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल, फिश ऑयल, दैट इज हार्ट हेल्दी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट में भी है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल में भी है, हम लोगों को हार्ट को हेल्दी रख सकता है। ओके, नेक्स्ट हियर, ये ऑयल हमको कौन सा ऑयल खाना है, कौन सा ऑयल नहीं खाना हमने देखा। और इसके अलावा कुकिंग ऑयल में जो डेली स्पेशली साउथ इंडियन हम लोग कौन सा ऑयल खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग फैटी ऑयल खाते हैं, पॉलीसैचुरेटेड नहीं होना, अनसैचुरेटेड फैट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खाते हैं, इसलिए they are having the risk of diabetes also, they are having the risk of heart disease also. Okay, preventing heart diseases rule 9 exercises देखो क्या है, maintain a level of physical activity that keeps you fit and matches the calories you eat। जब हम लोग देखो regularly we are having the habit to eat, but कोलेस्ट्रॉल जितना, कैलोरी जितना होगा बॉडी में उतना उसको भी बर्न करना है, इसलिए हमको बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी में रखना है। several functions in preventing and treating those at high risk. Okay, reduce the incidence of obesity, increase the HDL, lower the HDL, LDL, help the control diabetes and hypertension। हमको इतना सब चीज करना है, हार्ट डिसीज को से हमको प्रिवेंट करना है, इतना सारे याद रखो हो। फिजिकल एक्टिव रखना है, फंक्शंस टू रिस्क, देन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी को कम करना है, एचडीएल को इंक्रीज करना है, एलडीएल को कम करना है, और हमारा अगर डायबिटीज है, अगर हाइपरटेंशन तो हाइपरटेंशन को तो हाइपर बीपी को नॉर्मल कंट्रोल रखना है, और डायबिटीज वाले को डायबिटीज कंट्रोल करना है। ओके, ये सब करने से ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज को हम कम कर सकते हैं। Always keep in your mind exercise, 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 because physically active is the much need for the body to help them to keep healthy heart. Okay, mortality is held in retired men who walk more than 2 miles every day। देखो mortality is held in retired men who walk more than 2 miles। देखो रिटायरमेंट होने के बाद लोगों का आदत होता है बैठना है, कहाँ जाना है, अभी इतना दिन हमने काम किया, ये किया, but no, but they have to be habit of we'll have the another session after 5 minutes, we'll have the class। Okay, wait for 5 minutes, we will connect you shortly। क्या हो गया?